إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم حضرات، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو رمضان کا پورا مہینہ عبادت کرنے کی توفیق بخشا. ایک اور رمضان ہماری زندگی میں گزرا، بڑی عبادتیں ہم نے کی، قیام کیا، سیام کیا، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کیا، صدقہ فطر بھی ہم ادا کر چکے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اتنی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیہ نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ 30 دن پورے ہو جائیں تو تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس انعام اور احسان پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، انعام کیا، نوازش کی کہ سارے رمضان تم نے عبادت کی، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. دوستو عزیزو، اس شکرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں مزید دے گا، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ایسی نعمتیں ملیں گی. لیکن ایک کلیدی چیز، بنیادی چیز جو مجھے اور آپ کو بتانی ہے، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. عید کا جو خطبہ ہوتا ہے 20 منٹ سے زائد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مختصر باتیں جو آپ کے دل و دماغ کو پیغام دیں، دل و دماغ کو اپیل کریں، یہی باتیں کہی جاتی ہیں. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد جو بیان کیا، کہا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے جو آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو مجھے متقی بنا دیں، متقی بنا دیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا روزوں نے ہمیں متقی بنا دیا، ہماری زندگی میں بدلاؤ آ گیا. اب اس کے بعد ہم ایسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، ہم مسجدوں سے دور نہیں ہوں گے جیسے رمضان سے پہلے تھے. رمضان جب آیا تو ہم مسجدوں سے جڑ گئے، ہماری صورت شکلیں بدل گئیں. اب رمضان کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں، وہ ممبر و محراب، وہ صفیں، وہ وضو خانے ترستے رہ جائیں کہ وہ اللہ کے بندے کہاں تھے جو مسجد کو آیا کرتے تھے. رمضان میں جن سے مسجدیں منور تھیں، وہ خواتین کہاں گئی جو اللہ اکبر اور تسبیح و تحمید ان کی زبانوں سے نکلتا تھا. کیا مسجدیں تڑپتی رہ جائیں گی؟ اگر ہم متقی واقعی ہیں، لعلکم تتقون. چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. ہمارے سارے معاملات، سارے مشاکل، ساری مصیبتیں، سارے دکھ درد کا علاج اسی دوا میں ہے، وہ تقوی ہے. یہی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو سورہ آل عمران میں کہی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم مصیبۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. مسلمانوں، کیوں لرزتے ہو، کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں کانپتے ہو؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حالات ہم پر گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں، اس ملک میں بعض جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کو سن کر ضرور آپ کا دل دکھتا ہوگا. دکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں.
किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो हमारा दिल दुखता है। मेरे नबी ने ही कहा कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुन्यान यशुद्दु बअदुहु बअदा, मोमिन एक दूसरे के लिए एक बिल्डिंग की तरह है, एक ईंट मजबूत है तो दूसरी ईंट मजबूत है। हम मुसलमान हैं और हम अपने आपसी इख्तिलाफात को खत्म करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा दोस्तों, बंदो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, क्यों खौफ करते हो, क्यों दुख उठाते हो। ला तखाफू वला तहजनू व अंतुमुल अलाउन, तुम सर बुलंद रहोगे, ये जमीन अल्लाह की है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही। कैसे डरते हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, वो बंदियां क्यों तुम खौफ खाती हो, ये जमीन अल्लाह की है। यूरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह ताला उनको वारिस बनाता है जो अपने बंदों में से उन लोगों को वारिस बनाता है जिसको वो चाहता है। सूरत आल इमरान आया नंबर 120, जिसमें अल्लाह ताला ने साफ कहा इन तमसस्कुम हसनतुन तसउम, अगर तुमको कोई अच्छाई पहुंचती है तो ये दुश्मन, ये जो तुमको पसंद नहीं करते हैं वो लोग, उनको बुरा लगता है। अगर मुसलमानों में से कोई बच्चा आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, आलमी पैमाने पर मशहूर हो जाता है, तो इस्लाम दुश्मन ताकतों को डर लगने लगता है। अरे ये कैसा हो गया, अरे हम तो समझते थे कि ये पंचर वाले हैं, ये कैसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, कैसे इनके पास दौलत आ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैसे चलाते हैं। कुरान ने कहा इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुमको कोई अच्छाई आती है तो इनको रुला देती है। वइन तमसस्कुम वइन तुसिबकुम मुसीबा, अगर कोई मुसीबत तुम्हें आती है, मुसलमान अल्लाह ना करे मुकद्दर के फैसले से कभी जुल्म का शिकार हो जाते हैं, कई कोई हादिसे हो जाते हैं, ये लोग खुश हो जाते हैं। यफरहू बिहा, बहुत खुश होते हैं तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वइन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करोगे, अगर तुम सब्र करोगे, वतत्तकू, तुम मुत्तकी बन जाओगे। यही मुत्तकी बनाने के लिए रमजान आया था। हाँ, यही रमजान हमारे पास आया था। रमजान के मदरसे से आपने डिग्री ली थी, अभी उसी का बदला लेने के लिए इस मैदान में जमा है। कहा वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये दुश्मन ताकतों का मकर व फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डरने की जरूरत नहीं और कांपने की जरूरत नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। ये किताब है, कुरान मजीद है, इस किताब को रखकर कोई कौम जवाल पजीर हो सकती है? यह सबसे बड़ा फितना होगा कि ऐसी अशरफ किताब को रखकर कोई मखलूक जवाल पजीर हो जाए। ऐसी किताब जो लोगों के लिए हिदायत का बाइस है, जिसने सहाबे किराम को 50 साल के अरसे में दुनिया के अक्सर हिस्से में हुकूमत अता की, उस किताब की बरकत की वजह से अल्लाह ने हुकूमत अता की, उस किताब की तालीमात पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला ने बरकत अता की। दोस्तों अजीजों, मैंने आपसे कह दिया वइन तस्बिरू, अगर आप सब्र करें। लोग कहते हैं कैसे कैसे हालात हैं, क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब्र करें, सब्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुकद्दसा पर टेक लगाकर बैठे हैं। सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी आप देखते नहीं कैसे बिलाल हबशी के साथ हो रहा है, अम्मार उनके खानदान के साथ हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग थे उनको जमीन में कमर तक गाड़ कर आरा लेकर 2 टुकड़े कर दिया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सहाबा से कहा कि तुम सब्र करो। मैं भी यही बात कहता हूं कि आप सब्र करें, सब्र करें। वमन यत्तक़ि वयस्बिर, जो मुत्तकी बन जाता है और सब्र करता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह उसका अजर दाया नहीं करता है। दोस्तों अजीजों, यह रमजान का पैगाम था कि यहां जितने बैठे हैं बशमूल मेरे अपने, हम तकवा इख्तियार करें, तकवा इख्तियार करें, जिससे हमें दुनिया में सरबुलंदी मिलेगी। सब्र का दामन न छोड़ें। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, इसलिए कि सब्र ऐसी चीज है, बाज इसमें कहा कि आदमी इबादतें बजा लाने में अगर वो सब्र करता है, बाज इबादतें मशक्कत ज़दा होती हैं, आदमी सब्र का दामन हरगिज न छोड़े। ये पहला पैगाम था जो मुझे देना था। एक दूसरी चीज जो अपने भाइयों को बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो,
उसके साथ किसी को शरीक न करो। ये एक मुशरिक कौम जो शिरक करती हो, जिसकी पेशानियां आस्तानों पे झुकती हों, जिसकी पेशानियां कब्रों पे झुकती हों, जो अपने सूफियाओं से, पीरों से दस से सवाल दराज करती हो, कब्रों पर जाकर दुआएं करती हो, उनसे उम्मीदी रखती हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा। फकअन्नमा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया, वमन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है अल्लाह उसे छोड़ देता है, खर्रा मिनस समा, ऐसे लगता है कि वह आसमान से गिर रहा है। दोस्तों अजीजों, शिरक के जो मज़ाहिर हैं, सजदे की शक्ल में, कब्रों की तवाफ की शक्ल में, हाथों में जो तावीजें बंदी हैं, गलों में जो तावीजें बंदे हैं, और मर्द होकर भी औरत बाज लोग बन जाते हैं, गले में चैन लटकी है, हाथ में चैन लटकी है, ये सब एक सही मुस्लिम नौजवान की आदतें और खसलतें नहीं। अरे औरत खूबसूरत नहीं है, वो जेवर पहन के खूबसूरत बनना चाहती है। अरे तुम तो मर्द हो, तुमको क्या जरूरत है जी गले में चैन, इधर चैन उधर चैन। अरे तो मर्द है तो मर्द बनो, तुम्हारा मर्द होना ही तुम्हारे लिए खूबसूरती है। नहीं नहीं चांदी की, अरे चांदी की भी नहीं, सोने की तो हराम ही है। मर्द को किसी चैन की जरूरत नहीं है, किसी तावीज की जरूरत नहीं है, उसका मालिक अल्लाह उसके साथ है। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला ने दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। एक हुकूकुल्लाह वअबुदुल्लाह, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होना चाहिए। अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह को मिलना चाहिए, उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, दूसरी चीज उसके साथ शरीक न करो। और दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू जमाने के साथ साथ ये बात कर रहे हैं, कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना, मां बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये हुकूकुल इबाद है, दोनों होनी चाहिए। कितने ऐसे हैं घर में बीवी बच्चों के साथ जालिम हैं, मां बाप का एहसान नहीं मानते और नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, इत्तिकाफ में बैठे हैं। कैसे होगा जी? दोनों चीजें बराबर हों। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू रिसालत से इन दोनों चीजों पर फोकस किया कि अल्लाह ताला की इबादत भी हो, साथ साथ ये सारी चीजें हों कि खानदान के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी रिश्तेदारियां अदा की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट पर सवार हैं, गालिबन वो आरफा एक का मैदान है, तो एक आदमी अचानक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट की रस्सी को पकड़ लेता है, ऊंट की रस्सी को पकड़ता है। एक आदमी है, अब जिसने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबी हैं, गांव वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा काम बतलाइए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जन्नत से ये काम मुझे करीब कर दे, जहन्नम से दूर कर दे। यही सवाल तो मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और सहाबा से कहा, देखो जी लक़द वुफ़िक़ लक़द हुदीत, देखो ये जो आदमी सवाल कर रहा है बिल्कुल करेक्ट सवाल है, अल्लाह ने इसे तौफीक दे दी, अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, कैफ तक़ूल, क्या पूछ रहे थे आप? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, सहाबा भी सुन ले सवाल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जरा दोहराओ, क्या पूछ रहे थे आप? उन्होंने फिर सवाल दोहराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया, ऐसा अमल जो लोगों को जन्नत में ले जाए, अन तुक़ीमस्सलाह, तुम नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह अल्लाह, रमजान भर हमने इबादतें की, रमजान के बाद अपने वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, आखिरी सांस तक अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिदों से जोड़े रहें, अल्लाह से जोड़े रहें। वअबुदुल्लाह अन तुक़ीमस्सलाह व तुअतिज़ ज़काह, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो। और एक बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बताई, वतसिलुर रहीम, रिश्तेदारियां जोड़ो, रिश्तेदारियां जोड़ो। ये बहुत बहुत अहमियत वाली चीज है जिससे हम दूर हैं। हम लोग जानते नहीं कि रिश्तेदारियां क्या होती हैं, माँ बाप का एहसान क्या होता है, माँ बाप के साथ बिर्रुल वालिदैन क्या होता है, कैसे जन्नत मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में तिलावत कुरान की आवाज सुनी तो जिब्रील से कहा कि ये कौन है, ये किसकी आवाज में जन्नत में सुन रहा हूं? तो जिब्रील ने कहा कि फुला साहबी हैं। अल्लाह के नबी से फरमाया,
कज़ालिकुमुल बिर, कज़ालिकुमुल बिर। अरे वो अपने माँ बाप के साथ बहुत नेक सलूक करने वाले थे, अपनी बूढ़ी माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उनके सर में कंघी करते थे, माँ बाप की खिदमत अपने हाथ से करते थे। कभी आपने किया है? हम करते जरूर हैं, बीवी से कहते तुम करो। अरे बहू की जिम्मेदारी नहीं जी, माँ बाप की खिदमत करना बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की जिम्मेदारी है। अगर बहू करती है तो उसका एहसान है, उसका एहसान है। आप माँ बाप के साथ बैठें, माँ बाप के दुख दर्द को सुने, जैसे आप अपने बच्चे को गोद में लेकर चूमते हैं, प्यार करते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को तवज्जो से सुने। कितने ऐसे लोग हैं अपने मोबाइल को उतना टाइम देते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं देते, अपने माँ बाप को नहीं देते, और जानते अल्लाह जैसे ही मैं जाऊं जन्नत मिल जाए। बरकत। बातें बहुत लंबी हैं, इसका ख्याल रखें। एक और चीज मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, या माशरन निसा तसद्दक़न। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को नसीहत करते, मर्दों को पहले नसीहत करते। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ औरतों के सेक्शन में जाते, वहां बाहर खड़े होकर उनको नसीहत करते, या माशरन निसा तसद्दक़न, ऐ औरतों की जमात सदका करो, सदका करो। फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन नार, मैंने देखा कि जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर दो गलत आदतें हैं, तकफुरन लाना व तकफुरन आशीरा, तुम ज्यादा लानत करती हो। यानी आदमी अपनी बीवी को जो भी खिलाता है पिलाता है, कभी सैलरी नहीं मिली, थोड़ा जेब टाइट हो गया, थोड़ा कुछ नहीं पड़ा, तो यही जवाब, आपने मेरे लिए जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। खलास, बीवी यही बात बोलती ना, आपने मेरी जिंदगी में मैंने कभी खुशी ही नहीं देखी, 30 साल 40 साल आपके साथ हूं, मैंने खुशी ही नहीं देखी। हर औरत ऐसा नहीं बोलती है, जिसके पास दीन नहीं है वही औरत बोल सकती है, लेकिन दीनदार औरत ऐसे नहीं बोलेगी। वो तो वैसे सब्र करेगी जैसे अय्यूब की बीवी ने सब्र किया। अय्यूब की बीवी ने सब्र किया, अल्लाह ताला की इतने बड़े नबी, उन्होंने सब्र, उसकी बीवी ने सब्र किया। बरकत। वतकफुरन लाना वतकफुरन आशीरा, शोहर की नाफरमानी करती हो और ज्यादा लानत करती हो। तो मैं मेरी माँ और बहनों से कहता हूं कि आप लोग मुआशरे का सुतून हैं, पिल्लर हैं। आपके गोदों में अंबिया पले हैं, आपके गोदों में औलिया पले हैं, आपके गोदों में वाइजीन पले हैं, आपके गोदों ने उलमा को पाला है, आपके गोदों ने अइम्मा-ए किराम को पाला है। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद, इमाम हम्बल, ये सारे अइम्मा हैं, ये बड़े बड़े किबार उलमा हैं जो माओं के गोद में पले हैं। हकीकत में अल्लाह ताला ने औरत को इतनी सलाहियत दी है कि वो सारा खानदान मैनेज करती है, इधर शौहर को मैनेज करती है, उधर ससुराली घर में, बाद ससुराली घरों में जो रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है उसे भी वो मैनेज करती है। अल्लाह ताला ने औरत को ये ताकत और हौसला दिया है, बच्चे को गोद में लेकर उसे भी संभालती है, उसका खाना पीना देखती है, रातों को जागती है। इसी का नाम मां है, इसी के कदमों के नीचे जन्नत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वो शर्फ अता किया है। सहाबी ने 3 बार पूछा, मेरे पास दोनों हैं, माँ और माँ बाप दोनों हैं, मैं किसका ख्याल रखूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा, उम्मक उम्मक उम्मक, तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ का ख्याल रख। इसी का नाम माँ कहते हैं, इसी को माँ कहते हैं जो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत की मालिक होती है, यही वो औरत है। तो मैं मेरी माँ और बहनों से कहूंगा कि आज मुआशरा टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। मुस्लिम औरतें ये फर्क नहीं कर पा रही कि एक मुसलमान क्या होता है, काफिर क्या होता है, और वो सिर्फ ये समझती है कि मर्द है तो मर्द है, मैं उसके साथ शादी कर सकती हूं। इस्लाम ने कहा कि नहीं कर सकती। एक मुसलमान औरत एक मुसलमान मर्द ही से शादी कर सकती है। ये अल्लाह का कानून है। इर्तिदाद का एक समंदर है जो आपको मुझे ले डूबे जा रहा है। मैं सारे पेरेंट्स से कहूंगा, वालिदैन से कहूंगा, खासकर माओं से कहूंगा, अगर आपकी तरबियत में बच्चे बहकते हैं, अगर वो इर्तिदाद का शिकार होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर आदमी अपने मातहतों की जो लोग हैं उसकी हिफाजत करे, उसकी हिफाजत करे। अपने बच्चियों को पढ़ाइए जरूर, कॉलेजों में दाखिल कीजिए जरूर, मैं उससे मना नहीं करता, इल्म हर एक का हक है, लेकिन अखलाक की हिफाजत कीजिए,
उनको फॉलो कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे बच्चे बच्चियां कहाँ मिलती हैं, किससे मिलती हैं, उनके अखलाक कैसे हैं, क्या इस्लाम का अल्लाह का डर उनके दिल में है, अल्लाह का डर उनके दिल में पैदा कीजिए, जहां छोड़े वो महफूज होकर आएंगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। हम किसी को दोष नहीं देते, किसी को हम बुरा भला नहीं कहते कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर आप अपना घर खुला रखेंगे तो चोर जरूर आएंगे। घर पे ताला लगाइए, अपने खानदान की हिफाजत कीजिए, बच्चों को दीनदार बनाइए। बच्चे को आप कहीं भी डालें वो तीर कर वापस आ जाएगा, अपना दीन इज्जत बचा के आएगा। हमारा कसूर है, हमने लोगों को दीनदार बच्चों को दीनदारी से दूर किया। बैरकैफ ये चंद बातें थी जिसे जो मुझे आपके सामने करनी थी, इस पर आप हमेशा ये करें। और खासकर मैं एक बात बताता हूं, कभी हम जमाने के हालात को दोष देते हैं, कभी अपनों की दुश्मनियों का शिकार भी हो जाते हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की दुश्मनी और हसद का शिकार हो गए। मैं सारे मुसलमानों से कहता हूं, अभी टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें और हलाल और हराम के फतवे दें। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। हराम वाज़े है, हलाल वाज़े है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने खोल कर बता दिया है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि दुश्मन जिस निगाह से आपको देखता है उस निगाह से अपने आप को देखें। दुश्मन नहीं जानता कि आप में कौन हनफी है, शाफी है, हम्बली, अहले हदीस है, जमात इस्लामी है। दुश्मन तो बस यही जानता है कि आप मुसलमान हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने आप को समझे कि हम सब मुसलमान हैं। अरे हम अपनी निगाह से नहीं, कम से कम दुश्मन की निगाह से देखें और मुत्तहिद हो जाएं और सारी कदूरतों को, बुग़्ज़ और हसावत को, अपने हसद को अपने दिल से निकाल दें। अल्लाह ताला। और एक बात मुझे आपके सामने कहनी है, इस मुल्क में हम बसते हैं, इस मुल्क में हमारे जो बरादरान वतन हैं, जो नॉन मुस्लिम हमारे साथ हैं, उनके साथ हम अपने रवैये को बदलें। सिर्फ हम ही खाते रहें, हम ही खुश होते रहें, हम ही पहनते रहें, ये उसलूब अच्छा नहीं। हमारे साथ बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो हमारे साथ जीते हैं। ईद की खुशी का मौका है, आप खाएं, उन्हें स्वीट दें, मिठाई दें, अपने घर में जो पकता है दें, ताकि दिल करीब कर सकें। अल्लाह के नबी ने कहा, तहादू तहाबू, तुम एक दूसरे को गिफ्ट करो, हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी। कब तक तुम खुद खा के खुश होते रहोगे, मैंने ये खाया, वो पिया, ये पिया। अरे तुम्हारे घर के सामने जो पड़ोसी है, नाइबर है, उसे खिलाओ पिलाओ, भले वो तुम्हारे दीन का नहीं है। रमजान की ईद है, खिलाने और खाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। खैरात करो, सदका करो, फर्क करो नहीं कि मैं किसे दे रहा हूं, ये अपना है वो दूसरा है। जो भी मोहताज तुम्हारे सामने आए देते जाओ। इस मुल्क में रहते हुए यहां के हालात को समझना, बरादरान वतन से प्यार का सलूक करना, मोहब्बत बांटना जरूरी है। बुराई का बदला बुराई से नहीं होता, मोहब्बत से होता है। मोहब्बत ही जीतती है, बुराई मिट जाती है। कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। मैं अल्लाह ताला से इस मैदान में दुआ करता हूं, एक ऐसे ही मैदान में अल्लाह ताला हमको जमा करेंगे जैसे अल्लाह ने कहा, जिस वजा रब्बुक, जिस दिन तुम्हारा रब आएगा, वल मलाइकतु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफ़ों में खड़े होंगे। वजा रब्बुका वल मलकु यौमइज़िन सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम लाई जाएगी। आदमी अपनी आंखों से देखेगा, कहेगा कि या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैं कुछ कर लिया होता, आखिरत के लिए कुछ कर लिया होता। फकशफना अन्का ग़िताअका फबसरुकल हदीद, आज करने का मौका नहीं होगा, गफलत के पर्दे उठ चुके होंगे। अब वो जहन्नम होगी जो चीख रही होगी, उस जहन्नम से बचने के लिए कुछ कर लीजिए। अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी हर मामले में कीजिए। और साथ साथ मैं आपसे कहता हूं कि सदका व खैरात एक बहुत अच्छा अमल है जो गुनाहों को मिटाता है, जहन्नम की आग को ठंडा करता है। बहुत सारे मौके आपके सदका व खैरात के हैं, गरीबों को, फुकरा को, जिसे आप देना चाहें दें। और अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शे। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने लोग इस मैदान में बैठे हैं, जिनकी जो जो जरूरतें हैं, या अल्लाह सबकी जरूरतों को तू पूरा फरमा। या अल्लाह हम में जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको शिफाए आजिला अता फरमा, शिफाए कुल्लिया अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम के वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे।
یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے، یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، یا اللہ عالم اسلام میں دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں، یا اللہ تو ان کا مددگار، ناصر، حامی بن جا، یا اللہ تو سب کو رزق عطا فرما، یا اللہ تیرے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، تیرے خزانوں سے کچھ کم نہیں ہوتا، یا اللہ ہم مسلمانوں میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم میں جو لوگ اولاد کی نافرمانیوں کا شکار ہیں یا اللہ ان اولاد کو صحیح ہدایت نواز دے، یا اللہ ہماری بچیوں کے لیے صحیح رشتے عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بچے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے اچھے جاب عطا فرما، نوکریاں عطا فرما، یا اللہ ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ جن کے حق میں ایمان اور توحید ہے، ایمان ہے، یا اللہ انہیں ایمان عطا فرما، اے الہ العالمین رمضان میں جو نیک کام ہم کیے ہیں یا اللہ ان تمام نیک کاموں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔